کوئی طاقت ہمیں اس وقت تک شکست نہیں دے سکتی جب تک ہم اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اصلاحات کا عمل ایک صبر آزما کام ہے اور اس میں اسٹریس کو، مزاحمت کو بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وزیر اعظم کا اتحادی جماعتوں کے عشائیے سے خطاب۔ وزیر اعظم عمران خان سے بلوچستان عوامی پارٹی، MQM اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے وفد سمیت ارکان اسمبلی کی اسلام آباد میں ملاقات۔ ملک کی مجموعی صورتحال، اتحادی امور اور بجٹ سے متعلق معاملات پر تبادلہ خیال۔ اتحادیوں کو حکومت کو ٹیکس فری بجٹ پیش کرنے پر مبارکباد۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے ملکی اداروں کو تباہ کیا، بیرون ملک اربوں روپے کی جائیدادیں بنائیں، اپوزیشن کو عوام سے کوئی سروکار نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان ملک کے نجات دہندہ ہیں، وہ ملک کو ترقی کی راہ پر لے کر جائیں گے۔ وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز کی میڈیا سے گفتگو۔ بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا، اپوزیشن کس بات کا رونا رو رہی ہے؟ ماضی کی حکومتوں کی تباہ حال معیشت کو ہم نے بحال کیا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے پاکستان پر 35 سال حکومت کی۔ پیپلز پارٹی نے سندھ میں عوام کو راشن کے بجائے بھاشن دیا۔ وفاقی وزیر حماد اظہر اور مراد سعید کی میڈیا بریفنگ۔ بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کی بحفاظت وطن واپسی حکومت کی اولین ترجیح۔ کورونا وبا کے باعث پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے چارٹرڈ پروازوں کا سلسلہ شروع۔ PIA کی خصوصی پرواز نیو یارک سے 101 مسافروں کو لے کر لاہور پہنچ گئی۔ پاکستان میں کورونا کیسز میں مسلسل اضافہ، مزید 4072 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ متاثرین کی تعداد 2,09,55 ہو گئی۔ 83 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مجموعی طور پر 4118 اموات، 92,624 صحتیاب۔ بھارت لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزیوں سے باز نہ آیا۔ پاک آرمی نے LOC پر بھارت کا ایک اور جاسوس کوڈ کاپٹر مار گرایا۔ کوڈ کاپٹر 850 میٹر اندر آیا تھا۔ رواں سال میں پاک آرمی نے بھارت کا نواں کوڈ کاپٹر مار گرایا۔ DGISPR۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم انتہا پر، 11 ماہ سے بنیادی انسانی حقوق کے بغیر کرفیو جیسی صورتحال۔ قتل و غارت، گرفتاریاں، نظر بندیاں اور بے حرمتیاں معمول بن چکی۔ کشمیر میں نوجوان فاشسٹ مودی حکومت کا اصل نشانہ۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,01,69,000 سے تجاوز کر گئی۔ 5,03,000 افراد جان کی باسی ہار گئے۔ 55,09,000 صحتیاب۔ امریکہ میں 1,28,000 سے زائد ہلاکتیں۔ بلوچستان کی ضلع قلات میں ٹڈی دل کی الغار۔ سیب، آڑو، خوبانی، گندم، آلو، پیاز، خربوزہ، تربوز کی فصل متاثر، زمینداروں کو کروڑوں روپے کا نقصان۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں پری مونسون بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ اگلے 24 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، گلگت بلتستان، کشمیر اور اسلام آباد میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔
پاکستان کرکٹ ٹیم خصوصی تیاری کے ذریعے مانچسٹر پہنچ گئی. اسکواڈ میں 20 کھلاڑی اور 11 سپورٹ اسٹاف شامل. قومی اسکواڈ 14 روز قرنطینہ میں گزارے گا. تاہم پریکٹس اور ٹریننگ کی اجازت ہوگی. قومی ٹیم 13 جولائی کو ڈربی شائر روانہ ہوگی. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان اگست ستمبر میں 3 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز کھیلے جائیں گے. السلام علیکم. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ اور میں ہوں مناظر حسین. میں ہوں صدف علی خان. اسپورٹس نیوز کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں گا محمد انیس. خبروں کی تفصیل آپ ملاحظہ کر سکیں گے لیکن اس بریک کے بعد. کورونا وائرس سے بچاؤ ہمارے ہاتھ میں ہے اور صرف کچھ بنیادی احتیاطی تدابیر اختیار کر کے نہ صرف ہم خود اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی بچا سکتے ہیں. اپنے ہاتھوں کو صابن اور پانی سے کم از کم 20 سیکنڈ تک بار بار دھوئیں. کھانستے یا چھینکتے وقت منہ اور ناک کو ہر بار نئے ٹیشو پیپر یا اپنی کونی سے ڈھانپیں. اپنی آنکھوں، ناک اور منہ کو ہاتھ بالکل نہ لگائیں. مسافے کے لیے ہاتھ نہ ملائیں، نہ ہی گلے ملیں. کھانسی یا نزلے کی علامات کے حامل افراد سے کم از کم 3 فٹ کا فاصلہ رکھیں. رش والی جگہ جانے سے پرہیز کریں. بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جائیں. اگر آپ کو کھانسی، نزلہ یا سانس لینے میں دشواری محسوس ہو تو فوراً طبی معائنہ کرائیں. آئیے سب مل کر ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اور اس مشکل وقت سے نمٹنے میں اپنا کردار ادا کریں کیونکہ ہم سے ہے پاکستان. ناظرین بلیٹن میں ایک بار پھر خوش آمدید. خبروں کی تفصیل کی جانب بڑھتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم عمران خان سے بلوچستان عوامی پارٹی کے وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی. ملاقات کرنے والوں میں زبیدہ جلال، احسان اللہ ریکی، خالد حسین مکسی، اسرار ترین اور روبینہ عرفان شامل تھے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر دفاع پرویز خٹک، وزیر تعلیم شفقت محمود، ڈپٹی اسپیکر محمد قاسم سوری اور چیف وپ محمد عامر ڈوگر بھی ملاقات میں موجود تھے. ملاقات میں ملک کی مجموعی صورتحال، اتحادی معاملات اور بجٹ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ایم پاکستان کے وفد نے بھی وزیر اعظم سے ملاقات کی. وفد میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، آئی ٹی کے وفاقی وزیر سید امین الحق اور ارکان قومی اسمبلی اقبال محمد علی، کشور صحرا، صابر حسین قائم خانی، صلاح الدین اور اسامہ قادری شامل تھے. ملاقات میں کراچی سمیت ملک کی مجموعی صورتحال اور ترقیاتی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. اتحادی جماعتوں نے حکومت کو ٹیکس فری بجٹ پیش کرنے پر مبارکباد دی. گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے وفد نے جس میں بین الصوبائی رابطے کی وزیر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اور رکن قومی اسمبلی سائرہ بانو شامل تھیں، وزیر اعظم سے ملاقات کی. ارکان قومی اسمبلی نواب زادہ شاہ حسین بگٹی، محمد اسلم بھوتانی اور غلام بی بی بھروانہ نے بھی وزیر اعظم عمران خان سے الگ الگ ملاقات کی.
ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اصلاحات کا عمل ایک صبر آزما کام ہے اور اس دوران اسٹیٹس کو کی مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ اسلام آباد میں اتحادی جماعتوں کے ارکان کے احساس میں دیے گئے عشائیت سے خطاب کر رہے تھے۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی طاقت اس وقت تک نہیں ہرا سکتی جب تک ہم اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب آپ ریفارم کرتے ہیں، دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے کبھی بھی ریفارم آسان ہو۔ ریفارم کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے اسٹیٹس کو کے خلاف لڑنا ہے۔ تو جب اسٹیٹس کو کے خلاف آپ لڑیں گے، جو کہ کرپٹ نظام سے پیسے بنا رہا ہے، وہ آرام سے تو نہیں آپ کو موقع دے گا کہ آپ آ کے چینج کر دیں۔ کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکے گی جب تک ہم اپنے نظریے کے اوپر کھڑے ہوں۔ ہم ہاریں گے تب جب ہم اپنے نظریے پہ کمپرومائز کریں گے۔ مجھے بھی کہا گیا کہ یہ نہ کرو، جس طرح اور بھی چیزوں کا آج یہ جو ساری آپ کی اپوزیشن ہے، میرے لیے کتنا آسان ہے 5 سال گورنمنٹ کرنا۔ صرف میں نے ان کے 8-9 لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ تم فکر نہ کرو، تمہارے کیسز ہم آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ صرف یہ شیورٹی دینی ہے۔ 8-9 لوگ ہیں سارے اپوزیشن میں، بڑے آرام سے ہماری زندگی گزر جائے گی، ہم بھی آرام سے چلیں گے۔ لیکن تب یہ پارٹی، یہ ہماری گورنمنٹ، ہم تب ختم ہوں گے جب ہم اپنے نظریے سے پیچھے ہٹیں گے۔ دیکھیں، نظریہ جب تک نظریے کے اوپر آپ کی پورا ایک سپورٹ بینک، ایک پورا ووٹ بینک سارے پاکستان میں آج کھڑا ہے آپ کے ساتھ، وہ آپ سے کوئی امیدیں لگا کے آیا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ آپ پہلے دن کامیاب ہو جائیں گے یا 1 مہینے یا 1 سال کے بعد، لیکن وہ تب تک مایوس بھی ہوں گے۔ اونچ نیچ آتی ہے، سٹرگل ہے نا، آپ کی تو سٹرگل ہے۔ سٹرگل کبھی بھی سیدھی لائن میں نہیں ہوتی، اونچ نیچ ہوتی ہے۔ کوئی بھی دنیا میں آپ، کوئی بھی دنیا کے اندر جو سٹرگل کرتا ہے، وہ سٹرگل پلیز یاد رکھیں کبھی بھی ایک ہی لائن میں نہیں چلتی۔ مزید خبریں آپ ملاحظہ کر سکیں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور شام کی شہزادی کی شادی بہت اہمیت کی حامل بندوق تھی۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ شہزادی سے ہونے والی اولاد ہی تخت کی وارث ہوگی۔ تم یہ کام ختم کر کے یہودا کے ساتھ جا کر ارطغرل کو بھی اس کے انجام تک پہنچا دو۔ مجھے علم ہے کہ یہی دکھ مجھے حقیقی فتح کی طرف لے کر جائے گا۔ اب اگر کوئی چچا پہ شک کرے گا یا ان کے خلاف بات کرے گا تو مجھے بھی اپنا مخالف پائے گا۔ قرطغلو اور اس کی حواری مجھے سرداری سے ہٹانا چاہتے ہیں اور قندوقدو کو سردار بنانا چاہتے ہیں۔ تمہیں اور کس پر شک ہے؟ قرطغلو۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی۔ عوام کے حقوق کا محافظ، مگر جب عوام ہی اپنے قانونی حقوق سے لا علم ہو تو یہ ان کے حصول کے خاطر آواز کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اس لیے ہم لائیں گے آگاہی قانونی حقوق کی، کیونکہ مظلوم کی خاطر چاہے سب خاموش ہیں، قانون بولتا ہے۔
सिर्फ PTV न्यूज पर। मज़ीद खबरों में आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि स्मार्ट लॉकडाउन इख्तियार करने वालों में मेरी टीम सरे फहरिस्त है। फख्र है कि कोरोना से पैदा होने वाली बहरानी कैफियत में मुल्क को दुरुस्त सिमत में रखने के लिए ये तदबीर मेरे काम आई। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर हम SOPs का लिहाज रखते हैं तो बहरान की संगीनी से बखूबी निजात हासिल कर लेंगे। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने ब्लूमबर्ग के मज़मून का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि जर्मनी, इटली और पुर्तगाल कोरोना की नई लहर पर काबू पाने के लिए मकामी बंदिशों और मखसूस लॉकडाउन की पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस की वैक्सीन दरियाफ्त होने तक स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली से ही मामूलात जिंदगी की तरफ लौटना मुमकिन है। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि ऑपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ का पलंदा है। नून लीग ने अपने दौरे इख्तिदार में लूट खसूस से अपनी जायदादें बनाई। अब गैर मुल्क में जायदादें बनाने वाले मुल्क में आकर गरीबों का रोना रो रहे हैं। ऑपोजिशन को अवाम से कोई सरोकार नहीं। मुश्किलात के इस दौर में इलेक्शन की बातें करना ऑपोजिशन को जेब नहीं देता। वफाकी वज़रा सेनेटर शिबली फराज, मुराद सईद और हमाद अजहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तफसील मोहम्मद मजहर अब्बास से। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान इस मुल्क के निजात दहिंदा है। उन्होंने कहा कि अवाम की खुशहाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का विजन है और तहरीक इंसाफ पूरी तरह मुत्तहिद है और बजट भी पास कराएंगे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन अपनी करप्शन छुपाने के लिए बेताब हो रही है। अवाम की जो हालत जार है उसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन इन दो पार्टीज की है। इनमें सबसे बड़ा हाथ उनका था इस मुल्क को इस हालत में लाने का। आज वही इस बात पे लोगों को उकसा रहे हैं। हम इमरान खान की क़यादत में जितनी भी पार्टी है वो बिल्कुल स्टैंड के साथ, उनके साथ मुकम्मल यकजहती, उनके साथ पूरी सपोर्ट, और हम यही समझते हैं कि इस मुल्क का अगर कोई निजात दहिंदा है वो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। वजीर सनत व पैदावार हमाद अजहर ने कहा कि माजी की हुकूमतों की तबाहाल मईशत को हमने ठीक किया। अपोजिशन ने रिवायत को बरकरार रखते हुए बजट पर तनकीद की। ये एक रवायत बन गई है इनकी पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की, और मैं उम्मीद करता था कि इस मरतबा तो कम अज कम मुल्क इस दबाव में है, लोग हमारी तरफ देख रहे हैं कि जिम्मेदारी का सबूत देंगे, लेकिन लगता है ऐसे है इनको सिर्फ अपने सरमाए की फिक्र है, इनको सिर्फ इनाम चाहिए। ऐसे हिकमत अमली अपनाई जिससे मईशत जो है उसके ऊपर जो नुकसानात हैं उसको भी मिनिमाइज करने की कोशिश की गई और वबा को भी स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश किया गया, अपने लोगों की गुर्बत को सामने रखते हुए, उनके वसाइल को सामने रखते हुए, अपने मुल्क के वसाइल को सामने रखते हुए। वजीर मवासलात मुराद सईद ने कहा कि वजीर आजम पहले ही कह चुके हैं कि अपोजिशन आपस में नूरा कुश्ती खेलती है। माजी के हुक्मरानों की करप्शन सामने आने पर वो अवाम के सामना नहीं कर पा रहे। तो चोरों की मजलिस हुई है, ये कोई नई बात नहीं है। हमने बहुत पहले प्रिडिक्ट किया था कि ये असल में एक है, कभी लिबरल बन जाएंगे, कभी मौलाना के कंटेनर पे आपको नजर आएंगे। ये हर किस्म की इस किस्म के हरबे करेंगे। सिर्फ एक चीज कि इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान में पहली दफा कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। इस बजट को भी आवाम अप्रिशिएट करती है, इसमें रिलीफ पैकेज जो दिए गए उसको भी अप्रिशिएट करती है। पाकिस्तान इंशाल्लाह इमरान खान की तरह में तरक्की करेगा। जाकी वुज़रा ने कहा कि पाकिस्तान ने स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला 3 माह पहले किया, दुनिया इसकी तकलीद आज कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हालिया बजट में सेहत और तालीम के फंड में इजाफा किया है और गरीब तबके के लिए 1200 अरब का पैकेज दिया है। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। मुआविन खुसूसी इत्तलात और नशरियात लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि कोरोना के आगाज से ही मामूलात जिंदगी में तवाज़ुन पर तवज्जो मरकूज रही है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन और SOPs पर अमल दरामद वबा पर काबू पाने की कुंजी है। मुआविन खुसूसी इत्तलात ने कहा कि अवाम ने समाजी फासले बरकरार रखने और मास्क पहनने के हवाले से मिसाली बेहतरी दिखाई है। बहरी उमूर के वजीर अली हैदर जैदी ने कहा है कि आज दुनिया वही कर रही है जो इमरान खान रोज़े अव्वल से कहते आए हैं। अपने ट्वीट में वफाकी वजीर ने कहा कि दुनिया तस्लीम कर चुकी है कि मुल्क बंद नहीं किए जा सकते, मगर स्मार्ट लॉकडाउन से कोरोना पर काबू पाना मुमकिन है। अली जैदी ने कहा कि पूरी दुनिया को वजीर आज़म की बात समझ आ रही है। अगर किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा तो वो टोला है जिसने दोनों हाथों से सिंध को लूटा है।
वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी ने कहा है कि 4 माह कोरोना से लड़ने के बाद दुनिया को एहसास हो गया कि स्मार्ट लॉकडाउन ही वाहिद हल है। अपने ट्वीट में जुल्फ़िकार बुखारी ने कहा कि अमरीका और यूरोपीय ममालिक भी दीगर पाक फ़वाइद के लिए स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेहतरीन लीडरशिप पर वज़ीर आज़म, NCOC अरकान और तमाम फ़रीक़ैन मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। जुल्फ़िकार बुखारी ने कहा कि आज अगर कोई दूसरी हुकूमत होती तो तबाही का तसव्वुर भी न किया जा सकता। नाज़रीन, कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर नजर डालते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान में मजीद 4072 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटे में 83 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 2,02,955 हो गई है, जबकि मजमूई तौर पर 4,118 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। पंजाब में मुतासरा अफराद की तादाद 74,202, सिंध में 78,267, बलूचिस्तान में 10,261, खैबर पख्तूनख्वा में 25,380, इस्लामाबाद में 12,395, गिलगित बल्तिस्तान में 1,423 और आज़ाद कश्मीर में ये तादाद 1,027 है। अब तक मुल्क भर में 92,624 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 7,288 बार सेहत के रहनुमा उसूलों की खिलाफ वर्जी की गई, जिस पर 1,070 मार्केटों और दुकानों को सील किया गया, जबकि 1,234 ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माना और मुतादिद गाड़ियों को बंद कर दिया गया। सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जियां खैबर पख्तूनख्वा में देखी गई, जहां 178 मार्केट्स और दुकानों को सील किया गया, जबकि हिफाजती इक़दाम न करने पर 105 गाड़ियों को जुर्माना किया गया। पंजाब से 2,172, बलूचिस्तान में 786, सिंध में 489, आज़ाद कश्मीर में 390, गिलगित बल्तिस्तान में 183 और इस्लामाबाद में 16 शिकायत मौसूल हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि सहाफ़ियों और प्रेस क्लब्स की माली मुआवनत वज़ीर आज़म की देरीना ख्वाहिश है। हुकूमत आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती है। इस्लामाबाद में प्रेस क्लब्स की माली मुआवनत की तकरीब से खिताब करते हुए सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि सहाफ़ी बरादरी का मुल्क की तामीर और तरक्की में अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि खुद भी लिखारी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, इसलिए सहाफ़ी मेरे दिल के ज़्यादा करीब हैं। शिबली फराज ने कहा कि डॉक्टर्स, तिब्बी अमला और सहाफ़ी कौम की खिदमत में पेश पेश हैं। महदूद वसाइल के बावजूद सहाफ़ियों को माशी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कोशां हैं। सहाफ़ियों और प्रेस क्लब्स को माली मावनत के लिए वफाकी वज़ीर ने चेक भी तकसीम किए। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि वेंटिलेटर्स की पहली खेप रवां हफ्ते NDMA के हवाले कर दी जाएगी। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर ने कहा कि वेंटिलेटर्स की तैयारी के सिलसिले में NRTC मुबारकबाद की मुस्तहिक़ है। अगले 3 डिज़ाइन भी आखिरी मराहिल में हैं, जिसके बाद हम दुनिया के इन चंद ममालिक में शामिल हो जाएंगे जो पेचीदा मेडिकल मशीनें बनाते हैं। उन्होंने कहा कि ये तमाम मशीनें यूरोपीय यूनियन के स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं। नाज़रीन, पाक फौज ने कंट्रोल लाइन के तत्ता पानी सेक्टर में भारतीय जासूस क्वाडकॉप्टर मार गिराया। DG ISPR के मुताबिक भारतीय क्वाडकॉप्टर लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की हदूद में 850 मीटर तक अंदर आ चुका था। DG ISPR के मुताबिक रवां साल ये भारत का 9वां क्वाडकॉप्टर है जो पाक फौज ने मार गिराया। बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की, जहां अवाम गुज़श्ता 11 माह से तमाम बुनियादी इंसानी हुकूक के बगैर कर्फ्यू जैसी सूरत हाल में जिंदगी गुजार रहे हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के शोबा तहकीक के मुताबिक गुज़श्ता साल अगस्त में कश्मीर की खुसूसी हैसियत मनसूख किए जाने के बाद फौजी लॉकडाउन के 300 दिनों के दौरान कत्ल गारत, गिरफ्तारियां, नजरबंदियां और बेहुरमतियां मामूल बन चुकी हैं। रिपोर्ट में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियों के बारे में एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच के मुशाहिदात का
हवाला देते हुए कहा गया है कि फैशिस्ट मोदी हुकूमत का असल निशाना नौजवान है। रिपोर्ट में कुलगाम के इलाके रामपुरा में शहीद तौसीफ अहमद शेख की वालिदा नसीम अख्तर की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा गया कि कश्मीर में खवातीन खौफ, दहशत और बेहुरमती का सबसे ज्यादा शिकार हैं। सहाफत भी जुर्म बन चुकी है, जहां सच बोलने पर रिपोर्टर्स को हिरासा किया जाता है। श्रीनगर में पुलिस ने कठपुतली हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स के एहतजाजी मार्च को नाकाम बना दिया। तहरीक-ए-वहदत इस्लामी के वफ्द ने श्रीनगर में सीनियर हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद अशरफ सहराई से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद शफी लोन और पीर पंजाल सिविल सोसाइटी के चेयरमैन आमिर मोहम्मद शमसी ने भारत की तरफ से कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने के लिए नाफिज करदा मुतनाज़िया क़वानीन की शदीद मसम्मत की। नजरबंद हुर्रियत रहनुमा महराजुद्दीन कुलवाल के अहले खाना ने अदालत के बाइस नजर उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल से श्रीनगर मुंतकिल करने का मुतालबा किया है। उधर जम्मू की टाडा अदालत ने किश्तवाड़ के मारूफ आजादी पसंद रहनुमा जहांगीर सरवरी समेत 1 दर्जन से जायद अफराद के खिलाफ फर्द जुर्म दायर कर दी है। वजीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर ने गैर रियासती अफराद को मकबूजा कश्मीर का डोमिसाइल देने के भारतीय इक़दामात की मजम्मत की है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में इसराइल तर्ज के मजालिम ढा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर की डेमोग्राफी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दामात उठाए और भारत के खिलाफ आलमी, माशी और सफारती पाबंदियां लगाई जाएं। वफाकी वज़ीर ने भारतीय इक़दामात को आलमी अमन के लिए खतरनाक करार देते हुए कहा कि अब तो पूरी दुनिया का मीडिया भारतीय इंतहा पसंदी को इंतहाई खतरनाक करार देने लगा है। अमेरिका ने पाकिस्तान और चीन की जानिब से अफगानिस्तान से ऑपरेट करने वाले भारतीय दहशतगर्द को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल करने के लिए मुश्तरका करारदाद को ब्लॉक कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और चीन ने गुज़श्ता साल अफगानिस्तान से दहशतगर्द की कार्रवाइयों में मुलव्विस भारतीय दहशतगर्द वेनु माधु डंगोरा को सलामती काउंसिल की पाबंदियों की फहरिस्त में 1267 में आलमी दहशतगर्दी करार देने की मुश्तरका तजवीज़ दी थी। वेनु माधु डंगोरा दहशतगर्द तंजीमों को असलहा और धमाका खेज मवाद की तरसील में मुलव्विस था। पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका तजवीज़ के हवाले से हैरत अंगेज सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब अमरीका ने उसे तकनीकी बुनियादों पर मुस्तरद किया और ब्लॉक कर दिया। पाकिस्तान ने 2019 में वेनु माधु डंगोरा समेत 4 भारतीय शहरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल करने के लिए तजवीज़ दी थी। दीगर 3 भारतीय दहशतगर्दों में अजय मिस्त्री, गोविंदा पटनायक और अंगोरा आबादी शामिल हैं। भारतीय दहशतगर्द वेनु माधु डंगोरा पर एतराज़ के हवाले से पाकिस्तान ने मायूसी का इजहार किया है। दफ्तर खारिजा के तर्जुमान का भी एक बयान में कहना था कि चारों भारतीय अफराद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए फाइनेंसिंग और सहूलतकारी में मुलव्विस थे और ये चारों पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जमात उल अहरार और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों की तकनीकी, माशी और मादी मदद में मुलव्विस थे। तर्जुमान ने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान की जानिब से तजवीज़ किए गए दीगर 3 अफराद के हवाले से सलामती काउंसिल की 1267 कमेटी बराए सैंक्शन शफाफ और गैर जानिबदाराना गौर करेगी। भारत ने हमारे हमसाये में तवील तनाज़े का फायदा उठाते हुए बेगुनाह पाकिस्तानी शहरियों को शहीद करने के लिए दहशतगर्द ग्रुपों की ट्रेनिंग, माशी और मादी मदद के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फरोग़ दिया। दफ्तर खारिजा के तर्जुमान के मुताबिक ये भारतीय शहरी अब भारत में रिहाइश पसीर हैं। तर्जुमान के मुताबिक ये सूरत हाल पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को तक़वियत देती है कि भारत दहशतगर्दी को फरोग़ देने वाला मुल्क है। नाज़रीन, गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर को आज से सिख यात्रियों के लिए दोबारा खोला जा रहा है, जिस पर पाकिस्तान में मुकीम सिख कम्युनिटी ने खुशी का इजहार किया है और मोदी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो भी भारतीय सिखों के लिए करतारपुर बॉर्डर को खोल दे। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन सरदार सतवंत सिंह ने अपने पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान ने हमेशा की तरह एक मरतबा फिर पहल करते हुए गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर को सिख यात्रियों के लिए खोलने का फैसला किया है। इंडिया की तमाम सिख संगत नूं एक सुनेहा देना चाहना कि 29 जून नूं पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफों करतारपुर कॉरीडोर का जिहड़ा है खोलने का फैसला किया गया है और इस दौरान असी इंडियन गवर्नमेंट तो भी अपील करते हाँ कि 29 जून नूं इंडियन राही कॉरीडोर खोल दिता जाए ताकि जिन्नी भी
ਇੰਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਐਵੈਕਿਊ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਤਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਔਰ SOPs ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਏਗੀ ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 1,01,69,000 से तजावुज कर गई, जबकि अब तक 5,03,000 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। 55,09,000 अफराद कोरोना को शिकस्त देकर सेहतियाब, जबकि वायरस से मुतासरा 41,58,000 अफराद में 60,000 की हालत नाजुक है। कोरोना वायरस अमरीका में 26,17,000 अफराद पर हमलावर हो चुका है, जिनमें से 10,82,000 ने कोरोना को शिकस्त दी है और 1,28,250 जान की बाजी हार गए, जबकि 14 लाख से ज्यादा अब भी वायरस का शिकार हैं। ब्राजील, रूस और भारत में भी कोरोना वायरस से बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ है। चीन में इस वक्त कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 414 रह गई है। ताहम वबा के दौरान फूट जाने के खतरे के पेश नजर दारुल हुकूमत बीजिंग के करीब सख्त लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। चाइना नेशनल बायोटेक ग्रुप के मुताबिक इंसानों पर कोरोना वायरस वैक्सीन के तजुर्बे से मालूम हुआ है कि ये महफूज और मौसर है। इस वैक्सीन के ट्रायल के दौरान हौसला अफजा नताइज हासिल हुए हैं। इस तजुर्बे में 1,120 सेहतमंद अफराद ने हिस्सा लिया। इस दौरान इन अफराद को वैक्सीन पिलाई गई और उनके इज्तिमाम में हाई लेवल की एंटीबॉडीज दाखिल की गईं। चीनी कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म WeChat पर ये तफसीलात शेयर की, ताहम इस हवाले से मखसूस मालूमात जाहिर नहीं की गईं। नाज़रीन, चेयरमैन वापडा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मिल हुसैन ने कहा है कि द्यामर भाषा डैम मंसूबा पाकिस्तान की वाटर, फूड और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत अहम है। ये बात उन्होंने द्यामर भाषा डैम साइट के दौरे के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि द्यामर भाषा डैम में पानी जखीरा करने की मजमूई गुंजाइश 81 लाख एकड़ फीट है, जिसकी वजह से सैलाब की रोकथाम में मदद मिलेगी और 12 लाख एकड़ अराजी ज़ेरे काश्त आएगी। इस मौके पर ब्रीफिंग में बताया गया कि द्यामर भाषा डैम की बिजली पैदा करने की सलाहियत 4,500 मेगावाट है और ये नेशनल ग्रिड को हर साल औसतन 18 अरब 10 करोड़ यूनिट बिजली फराहम करेगा। चेयरमैन वापडा मेन डैम साइट के अलावा कॉन्ट्रैक्टर्स कैंप भी गए, जहां तामीराती सरगर्मियां शुरू करने के लिए भारी मशीनरी और दीगर आलात मौजूद हैं। वज़ीर तवानाई उमर अयूब खान ने हरीपुर के इलाके जबरी में बिजली के फीडर का इफ्तिताह किया। फीडर के इफ्तिताह से जबरी, बांदी, नला, टयाल, बधार, लंगरियाल, लसा, मसा और सतवाड़ के इलाकों में कम वोल्टेज के दरीना मसाइल हल हो जाएगा। इस मौके पर बातचीत करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि हमने खोलिया बाला ग्रिड स्टेशन पर मज़कूरा इलाकों को अलग फीडर से मुंसलिक करके अवाम से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। इलाके के मौजूदीन ने सैकड़ों देहात को अलग फीडर से बिजली की फराहम करने पर वफाकी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। अब PTV होम के नाजरीन 1 जुलाई से अपना पसंदीदा ड्रामा अर्तुगरुल गाजी हफ्ते में 5 दिन देख सकेंगे। MD PTV आमिर मंसूर के मुताबिक ये फैसला नाजरीन में ड्रामे की बेपनाह मकबूलियत के बायस किया गया है। पंजाब में कोरोना वबा के बायस हालिया पाबंदियों के मुस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। सूबे में बिना इम्तियाज तरक्याती कामों और ओवरसीज पाकिस्तानियों की वापसी की तफसील अनीसुर रहमान से। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा है कि सूबे में हालिया पाबंदियों पर अमल दरामद के मुस्बित नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा भी जिन इलाकों में जरूरत हुई स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा। वज़ीर आला ने शहरियों से अपील की कि वो हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करके अपनी और अपने प्यारों की सेहत यकीनी बनाएं। अपने बयान में उन्होंने कहा कि लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान समेत सूबे के दूसरे बड़े शहरों के अस्पतालों में हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स की तादाद में इजाफा किया गया है और सूबे में कोरोना टेस्ट की इस्तेदाद कार 12,000 योमिया हो गई है। सूबाई दारुल हुकूमत में स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की 35 से जायद प्लाटून तैनात की गई हैं, जबकि कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स में शहरियों की मजीद रजिस्ट्रेशन का काम जारी है। पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने पाक पुर्तगाल एसोसिएशन के सदर महबूब अहमद और तरीके कश्मीर यूरोप के चौधरी गुलाम गौस से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानी को वापस लाने के लिए हंगामी इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना बुरहान के बायस पाकिस्तान को माशी चैलेंज का सामना करना पड़ा और ये वबा जुलाई में मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने तरक्याती मनसूबों के जायजा
इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत नुमाइशी मंसूबों की बजाय हकीकी मसाइल के हल पर तवज्जो दे रही है। अनीसुर रहमान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। नाज़रीन, आपको बताते चले कि सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल ने कहा है कि सैयद मुनव्वर हसन मरहूम ने सियासत के साथ साथ इस्लामी तालीमात की तरवीज में भी गिरां कदर किरदार अदा किया, जबकि सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठाते हुए हलीम आदिल शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मसाइल की निशानदही की। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध की जानिब से कोरोना पर अवाम से एहतियात की अपील की तफसील से आगाह कर रहे हैं मोहम्मद जुबैरुद्दीन इस रिपोर्ट में। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने जमात इस्लामी के साबिक अमीर मुनव्वर हसन मरहूम के साहिबजादे तलहा हसन और अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक, कराची के अमीर हाफिज नईम से ताज़ियत में मरहूम मुनव्वर हसन की रहलत को नाकाबिल तलाफी नुकसान करार देते हुए गमज़दा खानदान से अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सियासी मुखालफीन भी मरहूम की दयानत और उसूल पसंदी के मोतरिफ हैं। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत की कारकर्दगी की निशानदही करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध को खंडरात जबकि शहर कराची को कचरा कंडी में तब्दील कर दिया है। डेवलपमेंट के बजट में 60 बिलियन की कमी हुई और नॉन डेवलपमेंट, जिसको अलल्ले तलल्ले का बजट कह लें, शाख खर्चियों का बजट कह लें, अय्याशियों का बजट कह लें, उसके लिए 100 अरब ज्यादा रखे गए। कोरोना वायरस की सूरत हाल पर बयान देते हुए सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि आज 1079 मरीज सेहतियाब होकर अपने घरों को गए हैं, जबकि 24 घंटों के दौरान 9244 टेस्ट किए गए हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि एहतियात में ही सेहत की जमानत है और इस हवाले से SOPs पर खास अमल किया जाए। सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, इम्तियाज शेख ने कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत ने महदूद वसाइल में हालात की मुनासिबत से एक मुतवाज़न बजट पेश करने की कोशिश की और इसे असेंबली ने मंजूर किया, जबकि अपोजिशन के खदशात को दूर करने के लिए अब भी कोशिशें जारी रखेंगे। कराची के 6 अजला की मुख्तलिफ यूसीज में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है, जबकि 10वें रोज भी इंतजामिया की जानिब से SOPs पर अमल दरामद कराया गया। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। खैबर पख्तूनख्वा में टिड्डी दल के खिलाफ भी हंगामी बुनियादों पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। महकमे ज़राअत, PDMA, इरिगेशन, आर्मी और मुतल्लिका ज़िलई इंतजामिया इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। पेशावर में मीडिया से बातचीत करते हुए सूबाई मुशीर इत्तलात अजमल वजीर ने कहा कि कोरोना ने पूरी दुनिया की मईशत को हिला कर रख दिया है। ऑपोजिशन मुश्किल वक्त में मनफी सियासत से गुरेज करे। मुशीर इत्तलात ने खैबर टीचिंग अस्पताल का भी दौरा किया और अस्पताल में कोरोना के मरीजों के इलाज मुआवजे के हवाले से दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। अजमल वजीर ने बताया कि अगले माह के आखिर तक सूबे के अस्पतालों, HDU और ICU बेड्स की तादाद मजीद बढ़ाई जाएगी। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान ने कहा है कि आइंदा माली साल के बजट में सूबे में लेबॉर्ट्री आलात की फराहमी, रिहैब सेंटर्स और अफरादी कुव्वत की बेहतरी के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ट्विटर पर अपने बयान में वजीर आला ने कहा कि सूबे में एयर एम्बुलेंस को इस्तेमाल में लाने के लिए अमला, लाइसेंस और हैंगर मौजूद हैं। इस हवाले के आने वाले से हुकूमत और अवाम दोनों को फायदा पहुंचेगा। ताहम इस हवाले से हतमी फैसला नहीं किया गया। वजीर आला ने कहा कि हुकूमत सूबे में पुरानी इमारतों और आसार कदीमा को भी बेहतर बना रही है। कोरोना वायरस से रोकथाम में मास्क पहनने की खासी अहमियत है, जबकि उमूमी नौयत में सेहतमंद शख्स मास्क लगाए तो इसका ये अमल बड़ी हद तक कोरोना से बचाव में मुआविन साबित हो सकता है। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं हसन नासिर, आइए देखते हैं। कारोबार का खुलना मईशत और लोगों के रोजगार के लिए अहम है। आवाम में भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क की अहमियत और हिफ्ज़ान सेहत के हवाले से शऊर बढ़ रहा है। मास्क का इस्तेमाल निहायत ही जरूरी है क्योंकि कोरोना से लोग बचेंगे इससे। अभी जैसे वायरस चल रहा है तो उसके लिए बेहतरीन इलाज जो है वो केयर है। बीइंग अ सिटीजन ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम जो है इस पर गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको सिंसियरिटी से उसको फॉलो करें। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग प्रिकॉशंस लें ताकि ये ज्यादा ना फैले। शहर में ऐसे लोग भी बड़ी तादाद में बाजारों और गली मोहल्लों में घूमते और खरीदारी करते नजर आते हैं जो हुकूमत और डॉक्टर्स की जानिब से दी गई हिदायत पर अमल नहीं करते। हम फ्रूट वगैरह लेने के लिए बाहर निकले हुए थे, लेकिन ये है कि मास्क जो है ना इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर्स और तिब्बी माहिरीन का कहना है कि एहतियात ही इस वायरस से बचाव का वाहिद जरिया है। कराची एक गुंजान आबादी है और लोग बहुत करीब करीब हैं, तो बेहतर ये है कि हर शख्स मास्क पहने
بہتر یہ ہے کہ کچھ بھی اگر اس کے پاس نہیں ہے تو 3 تہوں والے کپڑے کا ماسک بنا کے وہ ایسا ماسک پہنے جس سے اس کے ناک اور منہ کو وہ ڈھانپ سکے. انسانی جان خدا تعالیٰ کا سب سے بہترین عطیہ ہے. اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگی کا تحفظ کرنا ہر فرد کی اولین ترجیح ہونا چاہیے. یہی عقل اور اسلامی تعلیمات کا تقاضا بھی ہے. حکومت کی جانب سے اسمارٹ لاک ڈاؤن کے ذریعے جہاں شہریوں کو خریداری کی سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں، وہیں شہریوں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ SOPs کو فالو کریں تاکہ خود کو اور دوسرے لوگوں کو محفوظ رکھا جا سکے. حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. ناظرین، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ضلعی انتظامیہ کی بہتر حکمت عملی اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کے ثمرات سامنے آنا شروع ہو گئے. DC اسلام آباد حمزہ شفقات نے ایک بیان میں کہا کہ اسلام آباد میں SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروایا جا رہا ہے. ٹیسٹنگ اور قرنطینہ کی صلاحیت میں اضافے سے بھی نئے کیسز کی تعداد کو کم کرنے میں مدد ملی. انہوں نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر SOPs پر عمل نہ کرنے والے دکانداروں اور شہریوں کو جرمانے جبکہ گاڑیوں کے چالان کیے جا رہے ہیں. بلوچستان کے ضلع قلات میں ٹڈی دل کی یلغار نے تباہی مچا دی ہے. کروڑوں کی تعداد میں ٹڈیوں نے قلات کے مضافی علاقوں سکلکو، کاریز یوسفزئی، ہربوئی، کشتان، دشت، بڈو اور دیگر علاقوں میں سیب، آڑو، خوبانی، گندم، آلو، پیاز، خربوزہ، تربوز اور دیگر فصلوں پر حملے تیز کر دیے ہیں. زمینداروں نے ٹڈیوں کے خاتمے کے لیے اسپرے کا آغاز کر دیا ہے. کورونا کے باعث امریکہ میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے. نیو یارک سے آنے والی PIA کی 7ویں خصوصی پرواز PK 9722 کے ذریعے 101 مسافر لاہور پہنچ گئے. علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مسافروں کی تھرمل اسکیننگ اور کورونا ٹیسٹ کیے گئے. قومی احتساب بیورو کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کہتے ہیں کہ نیب دنیا کا واحد ادارہ ہے جس نے وائٹ کالر کرائمز کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے 10 ماہ کا عرصہ مقرر کیا ہے. نیب اعلامیے کے مطابق چیئرمین نے کہا کہ نیب کو 2019 میں 2018 کے مقابلے میں دگنی شکایات موصول ہوئیں. 1308 شکایات کی جانچ پڑتال کی، 1686 انکوائریاں اور 609 انویسٹیگیشنز نمٹائی گئیں اور بدعنوان عناصر سے 1 ارب 41 ارب 54 کروڑ روپے وصول کیے گئے، جبکہ 2000 سے اب تک 46 ارب سے زائد وصول کر کے قومی خزانے میں جمع کروائے گئے. نیب نے راولپنڈی میں اپنی فرانسک سائنس لیبارٹری قائم کی ہے. احتساب عدالتوں میں 1219 کرپشن ریفرنسز سماعت ہیں جن کی مالیت 9 کھرب روپے ہے. محکمہ انسداد بدعنوانی پنجاب نے آن لائن شکایات کے اندراج کی سہولت فراہم کر دی ہے. ننکانہ صاحب کے شہری گھر بیٹھے آن لائن درخواستیں دے سکتے ہیں. تفصیل سے آگاہ کریں گے جاوید احمد معاویہ. محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب کی طرف سے شہریوں کی سہولت اور کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے رپورٹ کرپشن کے نام سے ایپ کے ذریعے بھی درخواستیں وصول کی جا رہی ہیں. اس ایپ کے ذریعے کوئی بھی شہری کرپٹ عناصر کے خلاف اب گھر بیٹھے بآسانی اپنی شکایت درج کروا سکتا ہے. کسی بھی کرپشن کے حوالے سے اگر کہیں پہ بھی کوئی آپ کو کوئی معاملہ ہے اس طرح کا جو آپ رپورٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ ود ایویڈنس جو ہے وہ وہاں پہ رپورٹ کر سکتے ہو. آپ محض اپلیکیشن کو پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے موبائل سے گھر بیٹھے ہی کسی طرح کی بھی کرپٹ ایکٹیویٹی، کرپٹ پرسن کی آپ نشاندہی کر سکتے ہیں. بڑے ایزیلی آپ گھر بیٹھے جو ہے نا وہ اپنی اپلیکیشن جو ہے نا وہ ادھر دے سکتے ہیں. آن لائن درخواست دینے کے دوران شہری اپنی شناخت ظاہر کیے بغیر بھی کرپشن کے خلاف اپنی شکایت درج کروا سکتا ہے. رپورٹ کرپشن ایپ کے ذریعے شہری گھر بیٹھے کرپٹ عناصر کے خلاف شکایات درج کروا کر کرپشن سے پاکستان کے قیام میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. جاوید احمد معاویہ، PTV نیوز، ننکانہ صاحب. اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں دودھ اور مکھن کی. نماز فجر کے بعد دیہات کی خواتین روایتی انداز میں جمے ہوئے دودھ سے مدھانی کے ساتھ مکھن اور لسی کیسے نکالتی ہیں، بتا رہے ہیں کبیر والا سے یاسر وقار شاہ اپنی رپورٹ میں.
देहात में आज भी दूध से दही, मक्खन और लस्सी अलग करने के लिए रिवायती तरीकों से काम लिया जाता है। जहां की सुगड़ खवातीन खुद ही गाय या भैंस का दूध दोने के बाद ओपलों या लकड़ी की हल्की आंच पर सुबह से दोपहर तक दूध पकाने के बाद ठंडा होने पर शाम के वक्त लस्सी डालकर सुबह सवेरे दही से मक्खन और लस्सी अलग करने के लिए ये लकड़ी से बनी रंगीन मदानी और चाटी का इस्तेमाल करती हैं और ये काम सुबह की नमाज तिलावत कलाम पाक के बाद घंटे से आधे घंटे की लगातार मुशक्कत से मुकम्मल होता है। इस दौरान थोड़ी थोड़ी देर बाद चाटी से मदानी हटाकर इस बात का ख्याल रखा जाता है कि दही से मक्खन और लस्सी तैयार होकर अलग हो गए हैं। इस अमल में मक्खन इकट्ठा करने के लिए बड़ी महारत से दोनों हाथों से मक्खन के पेड़े बनाकर एक बर्तन में बड़े सलीके से रखा जा रहा है। अब लस्सी को मुकम्मल बारीक कपड़े में छानकर बालाई अलग से निकाल ली गई है, जिसे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। लेकिन वो भी क्या दिन थे जब आज से 25 से 30 साल कबल बड़ी बुढ़ियां महल्ले से आई हुई खवातीन को लस्सी के साथ मक्खन भी रख कर देती थी। यासिर वकार शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कबीरवाला। और अब आपको बताएं कि झंग की तहसील शोरकोट दस्तकारियों की सनत का मरकज बन गया है। चिकें और सरकी बनाने के कारखाने से बड़ी तादाद में लोगों का रोजगार वाबस्ता है। दस्तकारी की सनत में शोरकोट का अपना कोई सानी नहीं। अड्डा मच्छर चौक में सरकंडे से बनने वाली चिकें और सिरकी का कारखाना बनाया गया है। गर्मी का आगाज होते ही सरकंडे से बनने वाली चिकें और सिरकी की मांग में इजाफा हो जाता है। कारखाना के कारीगर का कहना है कि ये चिकें और सिरकी सरकंडे कपड़े और धागे से तैयार की जाती हैं। ये हर घर की जरूरत भी हैं। चिकें छत, दरवाजों, अलमारियों और दीगर जगह इस्तेमाल की जा सकती हैं। कारखाना में 40 से 50 मजदूर काम करते हैं। यहाँ बड़ी तादाद में चिकें तैयार करके पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ इलाकों और बैरून मुल्क में भी भेजी जाती हैं। चिकें गर्मी की शिद्दत कम करने में भी मददगार होती हैं। फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला में वैगन पर मोटरसाइकिल सवारों की अंधाधुंध फायरिंग से 5 अफराद जाँ भाग हो गए। पुलिस के मुताबिक अलमनाक वाक़या ननकाना रोड पर वाक़े ट्रक 526 बी में पेश आया। फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद जख्मी भी हुए। जाँ भाग होने वालों में 2 सगे भाई, उनका भांजा भी शामिल है, जबकि वैन ड्राइवर और एक नामालूम मुसाफिर जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू अमले ने जख्मियों को सिविल अस्पताल ननकाना साहिब मुंतकिल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में प्री मानसून बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा, मलाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इस्लामाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। और अब रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। खेलों में सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरे इंग्लैंड के लिए मैनचेस्टर पहुंच चुकी है। स्क्वाड में 20 खिलाड़ी और 11 स्पोर्टिंग स्टाफ शामिल हैं। मैनचेस्टर पहुंचने के बाद कौमी स्क्वाड के वोरेस्टरशायर में इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के ज़रिए एहतमाम कोरोना टेस्टिंग की जाएगी। इस दौरान कौमी स्क्वाड 14 रोज़ा करंतना में गुजारेंगे। ताहम उन्हें प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की इजाजत होगी। कौमी टीम 13 जुलाई को दरबीशायर रवाना हो जाएगी। बाएं हाथ के स्पिनर जफर गोहर इंग्लैंड में टीम को ज्वाइन करेंगे। उन्हें सिर्फ प्री मैच तैयारियों के लिए स्क्वाड में शामिल किया गया है। पाकिस्तान को अगस्त सितंबर में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट और 3 T20 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज खेलनी है। दौरा इंग्लैंड में पाकिस्तान क्रिकेट टीम खाली स्टेडियम्स में मैचेस खेलेगी। क्रिकेटर और टीम ऑफिशियल्स ने तमाशाइयों के बगैर खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से अपने वीडियो पैगामात में एहसासात का इजहार किया है। आइए आपसे शेयर करते हैं। फैन जो होते हैं वो बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं क्रिकेट में, और स्पेशली ग्राउंड में नहीं होंगे
उनसे बहुत मोटिवेशन मिलती है हमें भी, और जज्बे से हम क्रिकेट खेलते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अपनी परफॉर्मेंसेस से, अपनी कम्पिटिटिव क्रिकेट से आप लोगों को ग्रेट क्रिकेट मोमेंट्स दें। फैंस काफ़ी सपोर्ट करते हैं, काफ़ी केयर अप करते हैं, तो इस बार हम वो चीज़ काफ़ी मिस करेंगे। इंग्लैंड में हमेशा से क्राउड ने पाकिस्तान टीम को बहुत सपोर्ट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार जो है वो क्राउड जो है वो ग्राउंड में मौजूद नहीं होगा। सर, आप लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट किया है, मुझे सपोर्ट किया है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है अभी भी सपोर्ट करें। पहले मैं सबको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जी दोबारा से क्रिकेट का कमबैक हो रहा है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आप लोगों को अच्छी परफॉर्मेंसेस से और खुश करें। मेरी फैंस के लिए, फॉलोअर्स के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए ये सजेशन है कि हमें सपोर्ट करें और जहाँ जहाँ मौका मिले हमें फॉलो करें। आई होप कि हम आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरेंगे। कौमी टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान अजहर अली का कहना है कि कोशिश होगी कि दौरा इंग्लैंड में कप्तानी और बैटिंग की जिम्मेदारियों को अलग अलग आसान तरीके से निभाऊं। ऑनलाइन मीडिया कॉन्फ्रेंस में अजहर अली ने कहा कि इंग्लैंड में खेलना हमेशा चैलेंज रहा है और इसकी वजह वहां की कंडीशंस हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान टीम ने इंग्लैंड में गैर मामूली परफॉर्मेंसेस दी हैं। टेस्ट टीम के कप्तान ने कहा कि इंग्लैंड की टीम को होम ग्राउंड का फायदा होगा। उनका बॉलिंग अटैक अपनी कंडीशंस में हमेशा ही बेहतरीन रहा है, लेकिन हमारे पास भी बेहतरीन बॉलिंग के ऑप्शंस मौजूद हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर और कौमी टीम के स्पिन बॉलिंग कोच मुश्ताक अहमद 50 बरस के हो गए हैं। इंग्लैंड रवानगी से कबल मुश्ताक अहमद ने अपनी सालगिरह का केक काटा। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने मुश्ताक अहमद को सालगिरह पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। क्रिकेट में नए टैलेंट की तलाश के लिए पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी ने डिजिटल कैंप का ऐलान कर दिया है। नौजवान क्रिकेटर्स अपनी बैटिंग और बॉलिंग की वीडियोस सोशल मीडिया पर अपलोड करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। पेशावर ज़ल्मी के हेड कोच डैरन समी, मेंटोर हाशिम आमला और डायरेक्टर क्रिकेट मोहम्मद अकरम नए टैलेंट की तलाश के लिए सरगर्म हैं। हाशिम आमला, डैरन समी और मोहम्मद अकरम नौजवान क्रिकेटर्स की बैटिंग और बॉलिंग वीडियोज का जायजा लेंगे और जिन नौजवान क्रिकेटर्स की वीडियोज ने ज़ल्मी मैनेजमेंट को मुतासिर किया वो एमर्जिंग कैटेगरी में ज़ल्मी स्क्वाड का हिस्सा बन सकते हैं। खेलों से इतना ही, अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। मनासिर हुसैन और सदफ अली खान को इजाजत दीजिए। देखते रहिए पीटीवी न्यूज। हम सब पाकिस्तानी हैं और हम में से कोई भी सिंधी, बलोची, बंगाली, पठान या पंजाबी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र होना चाहिए। जिंदगी की आग का अंजाम खाकिस्तर नहीं, टूटना जिसका मुकद्दर हो ये वो गौहर नहीं। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी फेज में से गुजर रहा है कि जिसमें अगर हमने SOPs के ऊपर सख्ती से अमल न किया तो हमारे केसेस और अमवात में बतदरीज इजाफा होता चला जाएगा और नामालूम कब तक होता रहेगा। इसलिए हुकूमत की इस वक्त जो हिकमत अमली है वो ये है कि हम SOPs जो हैं उनका इतलाक यकीनी बनाएं। जो लोग इसके ऊपर अमल ना करें उनको इसका अकाउंटेबल करें। मास्क पहनना हमने ऑलरेडी लाजमी करार दे दिया हुआ है। दूसरा जो हमारा है जी वो है कि TTQ, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और क्वारंटाइन, जिसका मतलब ये है कि बजाय इसके कि हम एक जनरल किस्म का लॉकडाउन लगा दें, हम उन जगहों को लॉकडाउन करें कि जहाँ पे ज़्यादा केसेस है। तो ये दोनों चीज़ों का जो कम्बिनेशन है इससे इसी में हमारी आफियत है और तमाम पाकिस्तानियों को इसके उस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी।
وائرس کے خلاف جنگ میں مضبوط قوت مدافعت انتہائی اہم ہے۔ یہ ہیں کچھ ایسی غذائیں جو ہماری قوت مدافعت بہتر بنانے میں بے حد مفید ہیں۔ ادرک میں سانس کی نالیوں کے انفیکشن کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرنے کے لیے خصوصیات موجود ہوتی ہیں۔ اس میں پائی جانے والی جنجرول کی بے شمار مقدار نظام ہضم کو ٹھیک رکھتی ہے۔ لہسن کا استعمال بھی جسم میں قوت مدافعت بڑھاتا ہے۔ غذا میں اس کا استعمال نہ صرف نقصان دہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے بلکہ شریانوں کو بھی کشادہ کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کرکیومن ہلدی کا بنیادی جز ہے۔ اس میں ورم کش خصوصیات ہوتی ہیں اور یہ جوڑوں اور پٹھوں کے امراض میں مفید ہے۔ یہ پنجاب ہے، 5 سہانے دریاؤں کی سونی دھرتی، جس میں عشق چھٹا دریا ہے۔ یہ ایک خواب ہے اس دھرتی کے وارث شاہ نے ہیر لکھی اور رانجھے کی بنسی میں لاکھوں دل جیتے۔ یہ داتا کی نگری بھی ہے، میٹھے بولوں والے داتا، جن کے در سے کوئی سوالی خالی ہاتھ کبھی نہیں جاتا۔ اس دھرتی کے لوگ غضب ہیں، پیار کی خاطر جان بھی دے دیتے ہیں ہنس کر۔ زندہ دل ہے اور ہنس مکھ ہیں، یاروں کے سکھ ان کے سکھ ہیں، یاروں کے دکھ ان کے دکھ ہیں۔ ان کی محفل کھانے بن پوری نہیں ہوتی، دسترخوان پہ رنگ برنگے کھانے چن کر مہمانوں سے کھانوں کی تعریفیں سن کر خوش ہوتے ہیں۔ پیڑوں والی میٹھی لسی، گرم پلاؤ، ساتھ کہیں چوپال میں نیلا سرخ الاؤ۔ دل اور درد کے میٹھے قصے اور قصوں میں پیار بانٹتے درویشوں کی درگاہیں ہیں۔ درگاہوں پر میلے ٹھیلے، ڈھول کی تھاپ، سروں کے ریلے۔ سبز دوابے بیلے جنگل، سجے ہوئے یاروں کے دنگل۔ دور کہیں روہی کے دل میں پیلو پکھیاں، کوٹ مٹھن میں عشق تلاشیں مل کر سکھیاں، جن کی اکھیوں سے دریا پانی بھرتے ہیں۔ پاس سے گزرے اونٹوں کی خوش رنگ قطاریں، دکھلاتی ہیں ٹیلوں پر بھی ریت بہاریں۔ چکی کی کوکو میں لپٹی نرم ہوائیں، دور ترنجن میں مٹیارے ٹپے گائیں۔ اس دھرتی میں کھیت بہت، کھلیان بہت ہے، اس دھرتی کے لوگوں میں دہقان بہت ہے۔ کھیت تو ہر دہقان کا دل ہے اور یہ خطہ پورے پاکستان کا دل ہے۔ پاکستان کے ہر خطے کی الگ ہے خوشبو، جدا ہے رنگت، ہر خطے کے نرالے جذبے، نئی محبت۔ ہنستا بستا یہ گلدستہ ایک تحفہ ہے۔ یہ الفت ہے، یہ رحمت ہے، یہ عزت، یہ شان، یعنی رب کی ایک نعمت ہے دھرتی پاکستان۔ کورونا میں شرح اموات کیا ہے؟ عالمی اعداد و شمار کے مطابق یہ شرح 3 سے 4% ہے۔
अक्सर सूरतों में बरवक्त तिब्बी इमदाद से इसका इलाज मुमकिन है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है।